So hopefully you people have completed the practice paper. Yes. Revision paper I mean to say of chapter number 7 which I have given you in the last video. And its solution I have posted on the group. Today is 20th December and Monday. So first of all I would like to tell you in that solution one question was there. Question number 11B. वहाँ पे मैंने ऐसा लिखा था कि will explain in the next class. Yes. So is it solved by you? No. Right in India. No. Yes. कोशिश तो करनी थी. चलो वहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि 11 का B arrange in ascending order. A तो I have already given you the solution. B में क्या है? 5/6, 5/8, 7/4 and 2/7. Here, if you have noticed, all the decimals, in all the fractions, denominators are also unequal and numerators are also unequal. So what to do? First of all, we have to make the denominators equal to compare the fractions. And for that, we have to find out LCM of 6, 8, 4, 5 and 7. Which are denominators of all these fractions. तो हम क्या करें पहले? तो उनका LCM ढूंढें. ठीक है? With this method. 2, 3, 4, 2, 5, 7. 3, 2, 1, 5, 7. 3, 2, 3, 1, 5, 7. 3, 1, 1, 1, 1, 5, 7. 5, 1, 1, 1, 1, 7. 7, 1, 1, 1, 1. So LCM is 840 of all these. If you multiply these 2 2s are 4 2s are 8 3s are 24 5s are okay and multiply 7 करोगे तो you will get 840. This is the LCM. Now 840 we have to make in all denominators. ये जो denominator है वहाँ पे हमको 840 सेट करना है. How could we? तो 6 को by which number we can multiply 6 to get 840? For that what to do? Simple. 840 को 6 से divide करो तो आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा it is a multiple of 6 at which place you will get 840. तो कैसे करोगे? 840 जो है उसे पहले क्या करो? 6 से डिवाइड करो. ठीक है? तो वो क्या आएगा? 140. 8 तो 8 से भी डिवाइड करो तो यू विल गेट 105. 105. 4 840 को 4 से डिवाइड करोगे 4 2 4 1s and 0. 5 840 को 5 से डिवाइड करो ठीक है 168 and 840 को 7 से डिवाइड करोगे you will get 120. 12 7s are 82. Got it? So first of all you people have to find out कि by which number we multiply 6 to get 840, by which number we multiply 8 to get 840, by which number we multiply 4 to get 840, by which number we multiply 5 to get 840 and for 7 6. So first number is 5/6.
उसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 140, यहाँ पे भी 140, तो क्या आएगा 14 5 700 840। सेकेंड नंबर 5/8, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है 105 से, यहाँ पे क्या आएगा 525/840। चलो देन आफ्टर 7/4, 4 को 210 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 840 आ गया 1470। 3/5, तो 3 को 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 168 से, here it is 840, 504 and 2/7, 7 को 120 से, so you will get 240/840. Now we have to arrange these numbers in ascending order. Which place? Ascending order. Ascending means smallest to greatest. Which one is smallest one out of this? 240. This one. And 240 comes from 2/7. So answer will be 2/7 is smallest one. Got it? Chalo. Then next is this 3/5. Then next 5/8. And then next 5/6. And then next is 7/4. So this is the order, ascending order of the fractions which are given over here. तो ये fraction को कैसे कंपेयर करना है, फॉर दैट आई लेफ्ट द सॉल्यूशन, कि भाई ये सॉल्यूशन मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट मैंने आपको समझाया वो एसेंशियल है, लेकिन जो अगर स्मॉलर नंबर है और इफ यू कैन डू इट डायरेक्टली देन नो नीड टू शो द डिवीजन, वहां पे डिवीजन शो करने की जरूरत नहीं है, बट दिस नंबर इज बिगर वन and we could not get the idea at which place in 6 table we get 840, वो हमको पता नहीं है। 6 के टेबल में हमको 140th प्लेस पे 840 मिला, ठीक है। 8 के टेबल में 105 प्लेस पे मिला, 4 के टेबल में 210 प्लेस पे मिला, 5 के टेबल में 168 प्लेस पे मिला, एंड 7 के टेबल में 120 प्लेस पे मिला। So to get that idea, I do division over here. ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि LCM क्यों निकाला। LCM क्यों निकाला? To make the denominators equal. By comparing denominator or numerator, we get the idea which fraction is smallest and which is greatest. And here numerators are also unequal and denominators are also unequal. So to make the equal fraction or to compare it, the easiest method to find out LCM of denominators. So यहाँ पे हमने LCM निकाला, फिर उसको find out किया कि which place पे हमको LCM मिलेगा, and then we multiply with that place. We make the denominator same here. And then we compare the numerator. So this one is smallest one, this one is on second position, this one is on third position, this one is on fourth position, this one is on fifth position. And by comparing this fraction, we can compare the original one which are given over here. Clear? कॉपी करने की जरूरत है? I suggest to do it yourself. समझ लिया? अभी खुद करना, ठीक है। अगर बाकी है तो भी ये फिर समझने की बात है। चलो ये हो गया। नाउ क्लोज योर टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल पे योर अटेंशन टू मी एवरीबॉडी। अभी अपनी अपनी बुक्स बंद करो।
We are going to start chapter number 8. which is decimal fraction. And these you had learned in standard third. आप थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ के आए बराबर है। आज से सिर्फ आपको डेसिमल फ्रैक्शन कैसे फॉर्म होता है वो समझाने की कोशिश करती हूँ। पे योर अटेंशन टू मी। सो वी आर लर्निंग जस्ट नाउ डेसिमल्स ऑफ चैप्टर नंबर 8। See, we have learned fractions in chapter number 7. And in the fraction, there are two terms. One is numerator and second is denominator. So just now हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि to get the idea of the fraction, smaller, greater, everything, we should compare numerator and denominator. ठीक है? अभी डिनोमिनेटर अगर अलग अलग है तो उस हिसाब से हम जो है वो फ्रैक्शन को शो कर सकते। तो अगर डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल है, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करो। Got it? In the tens table, multiple of tens are more. कौन से आते हैं 20, 30, 40, 50, 60 onwards. Okay? But I am talking about the multiple of 10 in this form. Multiple of 10, 1 से मल्टीप्लाई करो क्या मिलता है 10, 10 से करो 100, 100 से करो 1000, 10,000, लाख बोल दिया 10,000. ओके, सो लाइकवाइज आप लोगों को मल्टीपल जो मिलेंगे वो भी इस तरह से मिलेंगे ये फॉर्म में. ओके, तो अगर डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पे 10 है या तो 100 है या तो 1000 है या तो 10,000 है, आगे भी आ सकता है. ठीक है, then we can show the number in the form of decimal fraction by using decimal point. जो आप थर्ड में पढ़ के आए हो, थर्ड में आप लोग सिर्फ प्रॉपर्ली एवरीबॉडी, थर्ड में आप लोग करेंसी पढ़े हो, मनी, इफ यू रिमेम्बर. थर्ड में आप लोग रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स ऑफ लेंथ पढ़े हो, रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स ऑफ वेट पढ़े हो. ठीक है, these all things you had learned and over there you have used this decimal point. वहां पे आप डेसिमल पॉइंट पढ़ के आए हो. फॉर एग्जाम्पल आप रुपीज एंड पैसा इस तरह से लिखते हो 2.75. ये र जो मैंने लिखा दैट इज द सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी. बराबर है, इंडिया में ये करेंसी हम यूज करते हैं रुपीज एंड पैसा. वी कैन शो इट इन दिस फॉर्म 2.75. दिस इज द यूनिट टू शो द करेंसी. ओके, हाउ टू रीड इट 2.75. पॉइंट के बाद 2 digits are there. It always shows 2 digits after decimal point to show the paisa, because the relation between rupees and paisa, 1 rupee is equal to 100 paisa. That's why paisa always shows in the 2 digits. What did ये आप पढ़ के आए हो. फिर आपको याद हो तो मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर का रिलेशन भी आप पढ़ के आए हो. मिलीमीटर इज द 10th पार्ट ऑफ सेंटीमीटर, है ना. आपकी जो रूलर आप यूज करते हो, ये अगर 0 से 1 का सेंटीमीटर है तो उसको इक्वल कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है 10 पार्ट. और जो एक पार्ट है 1/10 वाला दैट इज कॉल्ड मिलीमीटर. अगर ये पूरा सेंटीमीटर है तो ठीक है, तो उसका सेंटीमीटर का 10th पार्ट दैट इज नोन एज मिलीमीटर. हम लोगों ने अगर याद है आपको मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ये पूरा पढ़ के आए आप. और दैट शोज अस द डिफरेंस ऑफ 10 बिटवीन ईच एंड एवरी यूनिट. याद है? ये भूल गए? मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर. यहाँ से इस तरफ
जाते हो तो इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इस तरफ आते हो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। बराबर है। बिटवीन दिस टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 एंड बिटवीन दिस टू डिवीजन ऑफ, रिमेम्बर, याद है सबको? मैंने मिलीमीटर ही लिखा, मैं बोली मिली सेंटी डेसी मीटर तो यहाँ पे है वापस। गॉट इट? तो ये पढ़ के जो आए हो वही बात यहाँ पे रिवाइज करने की। तो यहाँ पे जो आप मिली सेंटी डेसी में मल्टीप्लाई करने की या डिवाइड करने की, that is shows us the decimal relations between the units. Okay? और स्ट्रेट बैठो। चलो अभी ये 1 अपॉन डिनोमिनेटर की बात में कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 10 है। लेट अस टेक द एग्जांपल। डिनोमिनेटर में 10 है, सपोज मैं 7 अपॉन 10 लेती हूँ, तो इसे हाउ टू रीड दिस? वी कैन रीड द नंबर। रीड कैसे करते हैं वो बोलो। 7 10 ऐसे रीड करते हैं, या तो 7 अपॉन 10, ठीक है। हाउ टू राइट इट इन द ठीक है। यहाँ पे ये 0 जो है वो होल पार्ट इंडिकेट करता है, 7 जो है वो डेसिमल पार्ट इंडिकेट करता है। गॉट इट? होल पार्ट में nothing is there. Why? Because single digit is there in the numerator. That's why it will come 0.7. होल पार्ट में 0 आया, डेसिमल के पहले जो डिजिट है it shows us the whole part, and after decimal it shows us the decimal part. तो यहाँ पे होल पार्ट में 0 क्यों आया? Because in the numerator single digit number is there. That's why. If we take 2 digit number 27 upon 10, so it will be converted into decimal point 2.7, where 2 shows us the whole part and 7 shows us the decimal part. ठीक है। 3 digit number, suppose 345, 3.45 मारो गप्पा, तो इसको क्या आएगा? 34.5। Okay, 34 shows us the whole part and 5 shows us the decimal part. I mean to say, if in the denominator 10 is there, डिनोमिनेटर में क्या है? 10 है, तो आपको राइट साइड से एक डिजिट लेके डेसिमल पॉइंट रखना है। कुछ भी नहीं है तो बिफोर डेसिमल 0 लिखो। एक डिजिट है तो एक डिजिट लिखो। 3 डिजिट है तो 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट के पहले आएगा, एक डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद आएगा। मानी अगर डिनोमिनेटर 10 है तो इफ यू हैव नोटिस, तो मैंने राइट साइड के सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल रखना। Yes. व्हाट इज? समझ में आया? तो हाउ टू शो द नंबर इन द डेसिमल फॉर्म। फ्रैक्शन में डेसिमल पॉइंट पे कब हम शो कर सकते हैं? इफ इन द डिनोमिनेटर, क्या है डिनोमिनेटर में? एक ने बोल दिया इसलिए सबने बोल दिया। डिनोमिनेटर में क्या है? 2 digit number. All number. 10 है। यहाँ पे सबके फेसेस क्यों ऐसे ब्लैंक है? नींद आ रही क्या सबको? तो फिर क्विकली आंसर चाहिए मुझे। व्हाट इज देयर इन द डिनोमिनेटर? 0. 10 है, तो 10 है तो हाउ कुड वी शो इट इन द डेसिमल फॉर्म? बाय पुटिंग द डेसिमल नंबर आफ्टर द वन डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड। क्या सो रहे हो सब लोग? व्हाट आर यू डूइंग? अभी तो लास्ट स्टेटमेंट तो मैं ये बोली कि व्हाट आई हैव डन, मैंने यहाँ 7 के बाद रखा, यहाँ 5 के बाद रखा, यहाँ 7 के बाद रखा, तो राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के मैंने डेसिमल पॉइंट रखा। व्हाई? व्हाट इज देयर इन द डिनोमिनेटर? 10. That's why I have put the decimal point here. हर कोई पेन घुमा रहा है, कोई सो रहा है, कोई बेंच पे पेन डाउन हो गया है। What are you doing? कोई बातें कर रहा है एक दूसरे के साथ। मैं कोई टाइम पास तो कर नहीं रही यहाँ पे।
for the 100 also if the denominator 100 is there, for 1000 also if the denominator 1000 is there, but it is currently it is not there in your syllabus till the 8.1 exercise. That's why I am explaining you only 10 as a denominator. Now we are moving ahead with the place value of the numbers. How to write down the place value of the number? Place value chart भी अगर आपको याद हो तो आप पढ़ के आए हो in the previous classes. Generally अगर कोई एक नंबर में लेती हूँ 345, यही ले ले हम लास्ट वाला, तो उसका हम प्लेस वैल्यू चार्ट, हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर? 3. Ones place, tens place, 100 place. Ones place में क्या है? 5, 4, 3. Okay? Now, if a number is written in this way, 345, then we can show it places likewise. But now, the number we have, which is 34.5. Okay? तो 34.5 उसकी प्लेस वैल्यू कैसे आएगी? So the place value chart remains as it is. How many digits are there? 3. कितने डिजिट है? 3. तो प्लेसेस भी कितने आएंगे? 3 आएंगे. ये जो नंबर है डेसिमल के बाद वाला, इसके लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं 10th प्लेस, ऐसा बोलते हैं. यहाँ पे जो 10th प्लेस हमने लिखा दैट इज फॉर 4, बट यहाँ पे 10th प्लेस लिखा दैट इज आफ्टर डेसिमल. ठीक है, तो ये 5 विल कम. अभी ये जो है उसे क्या आएगा? 1 प्लेस, ये जो आएगा 10. तो 1 प्लेस पे 4 एंड 3. सपोज मैं लेती हूँ 605.7, तो हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर? 4. 1, 2, 3, 4. यहाँ पे 1, 10 एंड 100, तो ये हो गया 1, 10, 100. यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, तो 6, 0, 5, 7. Got it? अगर प्लेस वैल्यू चार्ट दिया हुआ है, सपोज मैं आपको नंबर लिख के देती हूँ यहाँ पे. चलो, how could we show it? 7 ones, 8 tens and 200. But which number will come here? हमारी डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा? 9 के बाद. और ये नंबर ऐसे किस लिखेंगे? 7.9. Clear हो? So this is decimals which we have to learn in this chapter number 8. In chapter number 8 में पूरा डेसिमल पे ही एक्सरसाइजेस दी गई है. You should be aware decimals means in the denominator if 10, 100, 1000, 10,000 is there, then that number can be shown in the form of decimal by putting the decimal point after the single digit right side if 10 is there in the denominator. चलो एक लॉजिक दोहराओ. यहाँ पे 100 होगा तो मैम सेम नंबर है सपोज 7. बराबर है. यहाँ पे 1000 होगा. ठीक है, तो in this way you have to show the number in the decimal form. चलो, look at your page number 165 in your textbook. Page number 165 पे 3 figures are given. Page number 165 in your textbook. यहाँ पे 3 फिगर डिफरेंट फॉर्म में दी गई है. In the first one figure, there are 10 blocks arranged in the proper form. अगर उसमें से हमें एक ब्लॉक लेना है, तो what the fraction come over here? 9. एक ब्लॉक लेना है मुझे. आपको जो फिगर दी है वहाँ पे क्या है? इस तरह से फिगर है. यहाँ पे कितने ब्लॉक है? 10. How many total blocks? 10 blocks.
10 ब्लॉक्स में से अगर आप देखो तो एक ही ब्लॉक पास में ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/10। गॉट इट, क्लियर हो गया यहाँ पे। चलो अभी इसी को दूसरी फिगर में दिया गया है, ओवर है। आप देखोगे तो आपको प्लेस वैल्यू चार्ट भी दिया गया है ना। तो 10 प्लेस है, 1 प्लेस है एंड 10 प्लेस। यहाँ पे ऐसे दो ब्लॉक्स बराबर 10 10 10 वाले कितने हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 10 प्लस 10, तो कितना हो गया 20। मानी 10 प्लेस पे क्या गया 2 बराबर 20, तो 10 हो गया क्या, 2 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो 20 हो गया। देन आफ्टर अनदर वन क्या है 3, कितने लिए है 3 लिए। बट अगर आप 10th प्लेस पे जाओगे तो 3 आएगा और 1st प्लेस पे 2 आया। 1st प्लेस पे क्यों 2 आया भाई, नहीं 1 प्लेस में 3 है, 1st प्लेस पे 2 है और 10th प्लेस पे 3 है। 1st प्लेस पे 2 मीन्स उसको 2 ब्लॉक्स ही लिए है, 20 नहीं लिए। गॉट इट, तो ये 10th वाला नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये 3 हो गए। और ये 2 ब्लॉक से लिए 10 प्लस 10 नहीं लिए, 1 पूरा ले लिया, 1 बराबर है, तो 1 प्लस 1 तो 2 हो गया। तो 10th प्लेस में 3 है, मानी ये डेसिमल के बाद का है और ये डेसिमल के पहले का। इसको मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूं तो 23/10। गॉट इट, तो इस तरह से थर्ड वन फिगर भी है आपकी टेक्स्ट बुक में, देखो वहां पे 10 प्लेस पे 2 है, 1 पे 3 है एंड पे 5। समझ में आई वो फिगर, थर्ड वन फिगर आपको, थर्ड वन फिगर समझ में आई सबको। वहां पे जो मैं 10 10 ले रही थी ना वैसे लिया है, देखो 10 10 तो 20 हो गया। ये एक ब्लॉक 10 हो गया, दूसरा क्या हो गया 10 हो गया। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में उन्होंने क्या किया, तो 10 प्लेस लिया, 1 प्लेस लिया एंड 10 लिया। तो यहाँ पे 2 लिया, 1 प्लेस पे हाउ मेनी आ गया 3, यहाँ पे 1 2 एंड 3 लिया एंड 10 प्लेस पे 1। तो ये क्या डेसिमल बना, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 235/। गॉट इट, चलो तो अभी ट्राई दिस जो है यहाँ वो आपको कंप्लीट करनी है, हम स्पीडली डिस्कस कर ले, आपको खुद करनी। फर्स्ट, कैन यू नाउ राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। इसके आंसर्स टेक्स्ट बुक में लिख लो आप लोग, क्योंकि प्लेस वैल्यू चार्ट इज ऑलरेडी गिवन और वहां पे आपको क्या लिखना है, सिर्फ नंबर। चलो फर्स्ट में क्या आएगा आंसर, 538.1। ऐसे आंसर नहीं दोगे, जिसको मैं पूछूंगी वही बोलेगा। चलो नंबर 2, नंबर 2 में क्या आएगा, पढ़ना ऐसे है कि 273.4। चलो नेक्स्ट 354.6। राइट इट डाउन इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। तीनों के तीनों आंसर टेक्स्ट बुक में लिख दो। देन क्वेश्चन नंबर 2, राइट द लेंथ्स ऑफ रवि's एंड राजू's पेंसिल इन सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो ये कौन से रेफरेंस में पूछा है, तो दिस एग्जांपल इज गिवन ऑन 164 पेज पे, जहाँ पे 10th एक्सप्लेन किया है वहां पे। गॉट इट, तो आप लोगों को यहाँ पे 7.5 आंसर फॉर रवि's पेंसिल एंड 8.3 फॉर राजू's पेंसिल, वो लिखना। ये आंसर आपको नोटबुक में लिखना है, बाद में आप लिख देना, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3, मेक 3 more examples similar to the one given in question 1। तो क्वेश्चन 1 में जैसे प्लेस वैल्यू चार्ट दिया है वैसा चार्ट आपको बनाना है, 3 नंबर्स लेने हैं रैंडमली और उसके आंसर्स लिखने हैं। ओके मैम, So this
you have to complete by your own. And then 167 पे try this दिया है, that you have to just copy the question we will solve in the class. And questions 1 to 6 from 8.1 वो कॉपी करके आना. 8.1 के 1 से लेके 6 नंबर तक के क्वेश्चंस कॉपी करके आना. आज का होमवर्क क्या? Complete. ट्राई दिस कंप्लीट करना है, क्वेश्चंस कॉपी करना.